Hello everyone. I hope you all have understood the last video. In previous videos I have explained about the economic policies, new economic policy 1991. We have brought this new economic policy in 1991 just because of the restrictions made by the IMF, that World Bank, for us against giving the loan to us. When they gave us the loan, IMF gave us the loan, then they asked us to change our economic reforms. They forced us, even not only asked, they forced us to bring new economic policy in your country. Otherwise you'll not get the loan. But we were in so need because we were not left with the money, we were not left with the currency. We were so in need of the loan. The public sector was totally in debt. Now public sector had taken earlier so many loans and they had to pay interest also, as well as they have done so many expenditures also in the economy. Due to those expenditure, money supply was increasing, many problems arise. Now we'll study liberalization, privatization and globalization separately in our this video. First I'll give you a short explanation about liberalization, privatization and globalization. Liberalization means making private sector or the import and export everything liberal, free from the clutches of the or we can say that free from the restrictions or barriers put it on by the government. Earlier government has put on the license burden on the private sector, import duty, export duty, tariffs, quotas, so many restrictions or trade barriers burdened by the government. Now removing all these restrictions was known as the liberalization. Liberalizing private sector to enter into any sector, enter into any field, grow it. If they want to, if there is any existing private sector, they can produce variety of goods without any license, and if they want to open a new industry, they can without any license. And privatization means अपनी गवर्नमेंट सेक्टर ने अपनी जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बेच देना प्राइवेट सेक्टर को, कि मतलब वो अब हमारा राइट नहीं है, अब हमारी ओनरशिप खत्म, हमारी मतलब गवर्नमेंट की ओनरशिप खत्म और अब वो ओनरशिप बन जाएगी प्राइवेट सेक्टर की, सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना. दिस इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन. And globalization means integrating the national economy with the world economy. हमारी national economy को world की economy के साथ जोड़ना, making our economy a borderless world, borderless economy, कि कोई border है ही नहीं, आप कहीं से भी आप कोई भी trade कर सकते हो, कोई आपके ऊपर कोई restriction नहीं है. So अब हम लोग in depth पढ़ेंगे. सबसे पहले आ जाता है liberalization. अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस. जो भी कोई नई प्राइवेट सेक्टर खोलना चाहता था तो पहले रिस्ट्रिक्शन था दैट यू हैव टू टेक द लाइसेंस, एंड इफ देयर वाज एग्जिस्टिंग प्राइवेट सेक्टर, अगर उनको कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो दैट देन आल्सो दे नीड द लाइसेंस. तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस और एंट्री रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए गए थे. एम क्या था कि जो हमारी इकोनॉमी की पोटेंशियल है ग्रो करने की, कितना ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा कम्पीट कर सकता है. अगर हम ग्लोबलाइजेशन भी लेकर आते हैं, बाहर से जो भी हम लोग रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, बाहर की एमएनसीज को अगर हम लोग एनकरेज करेंगे कि यहाँ पे आओ, इन्वेस्ट करो और एक्सपेंड करो, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा. बट गवर्नमेंट वाज नॉट in the stage of trusting all these things. So government was only trusting themselves, like public sector will do the social benefit and the growth of the economy, private sector will exploit the social welfare. So this was the thing, this was the mentality of the public sector earlier. But after this new economic policy, they have to leave this mentality, they have to encourage private sector and the MNCs also to invest and expand in the economy. By this we unlock the economic potential of the country. Okay. एंड देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो लिबरलाइजेशन के अंदर में हम लोग जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे वो कौन कौन से थे. हमने फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ चेंजेस किए, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो भी हमारी पॉलिसीज थी उसको भी हमने चेंज किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम लोग रिफॉर्म्स लेके आए, टैक्स रिफॉर्म्स जिसे फिस्कल रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं, और जो हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी, जो भी पॉलिसीज हमारी बनी थी 1950 से 1990 में, उसको हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया. तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जहां पे पैसे की बात सारी आ जाती है. तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जैसे कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड दीज ऑल फाइनेंशियल सेक्टर वाज रेगुलेटेड बाय आरबीआई. रेगुलेटेड बाय आरबीआई. आरबीआई ने रेगुलेट करता था, कमांड करता था, सुपरवाइज करता था. अब आरबीआई ने भी अपना रूप चेंज किया, हम देखते हैं आगे. तो इसमें क्या है, FARE, यू कैन लर्न इट एज FARE. फर्स्ट वाज foreign investment limit in banks was raised to around 51%.
Earlier, the limit to invest in the bank was less than 50%, that means 49%, so that they'll not get the ownership, because the person who is having 51% shares of anything, 51% investment in any company, in anything, then he or she becomes the owner of that company, right? So 49% and 51%, अंतर तो सिर्फ 2% का है, लेकिन जिसके पास 49% हो तो that means less than 50%, तो they were not treated as the owner of the company, and those who were having 51% they were treated as the owner of the company. Earlier, foreign investors was not allowed to invest in banks more than 49%, but now they have been allowed. Okay, you just come and invest in our bank, in mutual funds, merchant bankers, you can invest. ये सारी चीजें, पेंशन फंड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इसमें अब आपको 51% से ज्यादा आप खर्च कर सकते हो. इसके अंदर अभी ये सेकंड पॉइंट है ऑटोनॉमी टू बैंक, तीसरा है रोल ऑफ आरबीआई, चौथा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. इन चारों को भी हम लोग इन डेप्थ पढ़ते हैं. पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर देख लीजिए. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स such as merchant bankers, mutual funds and pension funds were now allowed to invest in Indian financial market, and that also up to around 51%. They become the owner of that investment. Now, autonomy to banks to set up new branches. अब जितने भी बैंक्स हमारे यहाँ पे हैं, पहले क्या होता था, अगर आपको कोई नया बैंक खोलना है, सपोज एक बैंक का मैं नाम लेती हूँ, एसबीआई है. एसबीआई ने अगर अपनी कोई ब्रांच कहीं पे खोलनी है तो पहले उसे पूरा परमिशन लेनी पड़ती थी आरबीआई से, मैं खोलना चाहता हूँ, ये है, यहाँ मैं खोलूंगी नहीं. अगर आरबीआई ने डिनाई कर दिया तो दे वर नॉट अलाउड टू ओपन द ब्रांचेस. आरबीआई ने अलाउ किया, ओनली देन दे वर अलाउड टू ओपन द ब्रांचेस. बट नाउ they have given the freedom to all the banks that you can set up your branches anywhere in the economy, but for setting up your branches you have to follow some terms and conditions that were made by the RBI. Although you don't need the approval by the RBI at every moment, but you have to follow some terms and conditions. So banks were given freedom to set up new branches after the fulfillment of certain conditions without the approval of the RBI. Third, the role of RBI. Earlier, RBI was the regulator only. RBI was the commanding authority. हर चीज की कमांड करता था. If you will not follow, I'll de-recognize you. हर चीज का कमांड करता था. तो सारे बैंक जो थे उससे डर के रहते थे. बट नाउ डर के इन द सेंस, अगर उसने डी-रिकॉग्नाइज कर दिया तो बैंक्स की जो खुद की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, लोगों का ट्रस्ट बैंक पर से खत्म हो जाएगा. तो दिस वाज द आरबीआई. वो सुपरवाइज करता था, देखता था और ऑर्डर्स देता था. बट नाउ आरबीआई हैज चेंज्ड इट्स function from the as a regulator to the facilitator. Earlier it acts as a regulator, वो regulate करता था, command करता था, but अब वो regulate नहीं करता, अब वो facilitate करता. Although supervise वो अभी भी करता है कि लोगों ने terms and conditions, that means जो banks आगे खुले हैं उन्होंने terms and conditions follow किए हैं या नहीं किए हैं, but अभी वो facilitator की तरह काम भी करता है, facilities provide करता है. और जो बैंक्स हैं, जो भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, वो अपने लेवल पे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. पहले नहीं ले सकते थे, पहले हर चीज आरबीआई से पूछनी पड़ती थी. बट नाउ आरबीआई इज नॉट एक्टिंग एज अ रेगुलेटर. नाउ यू कैन टेक द डिसीजंस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स ऑन योर ओन विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई. But you have to keep in mind the terms and conditions which have been laid by the RBI. Last is establishment of the private sector banks in India. They encouraged private sectors also to make banks, to establish the banks, private sector like ICICI or HDFC, Axis Bank. So they had made the private sector banks, which increased the competition also in the economy with the government bank. Now by increasing the competition, government banks also started working very good. They have also started providing good facilities to the customers, and they lowered the interest rates on loans also as well. So this was the benefit which came from the establishment of the private sector banks, which increased the competition and lowered the interest rates, and better services was provided to the customers. These were the financial sector reforms. I hope you understood it. Now came foreign exchange reforms. Foreign exchange means जो बाहर के साथ जो हमारा जो पैसे का जो चेंज हो रहा है. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग और द अदर कमोडिटी, वी आर टॉकिंग हियर अबाउट फॉरेन करेंसी. तो इन 1991 एज एन इमीडिएट मेजर, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था जो स्टेबलाइजेशन मेजर आया था, उसमें हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में बीओपी को ठीक किया था.
BOP मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा या तो सरप्लस में जाता है या डेफिसिट में जाता है। जब हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं या बाहर घूमने जा रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ से बाहर जाएगी। जब फॉरेन करेंसी बाहर जाती है तो उसे हम लोग डेफिसिट में लेते हैं। जब फॉरेन करेंसी हमारे पास आती है तो उसे हम लोग सरप्लस में लेते हैं, उसे प्लस में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो उस टाइम पे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ गया था, इधर डेफिसिट और सरप्लस में चल रहा था, बैलेंस नहीं चल रहा था। तभी हम लोगों ने IMF को बात की, तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स लिए गए जिससे कि हम अपने BOP को ठीक कर सके। उन स्टेबलाइजेशन मेजर्स में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में हम लोगों ने क्या किया, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज और दूसरा मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। डीवैल्यूएशन, देखो डेप्रिसिएशन अलग होता है, डीवैल्यूएशन अलग होता है। अब डीवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी का मतलब जब गवर्नमेंट जानबूझकर डेलिबरेटली अपने रुपी की वैल्यू को कम करती है, जब गवर्नमेंट जानबूझकर अपने रुपीस की वैल्यू को कम करती है, ध्यान से सुनिएगा, जब अपने रुपीस की वैल्यू को जानबूझकर कम किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। अब ये दिमाग में आता है क्यों कम कर रही है, हम तो नुकसान में जाएंगे। अगर कम होगी हमारी वैल्यू तो हमारी करेंसी उनके लिए चीप हो जाएगी, चीप होगी तो वो लोग यहाँ पे खर्चा करेंगे, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उनकी फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पे आएगी। तो मैंने अभी बताया था कि फॉरेन करेंसी का आना सरप्लस होता है, हमारे लिए पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास वो कमी तो हो रही थी जिसे हमें पूरा करना है। तो ये जानबूझकर किया जाता है, कुछ टाइम के लिए किया गया डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, जिससे कि हम अपने BOP को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो ठीक कर सकें। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब कि हम लोगों के जो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा है, जो भी हमारा एक्सचेंज रेट आ रहा है, वो मार्केट कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आए। आप लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसमें प्राइस डिटरमाइन होता था अकॉर्डिंग टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होती थी, जिसके अंदर आप देखते थे एग्जिस्टिंग प्राइस पे एक्सेस डिमांड हो रही है, तो टू करेक्ट द सिचुएशन वी हैव टू डिक्रीज द प्राइसेस, या एक्सेस सप्लाई हो रही है तो टू करेक्ट द सिचुएशन वी हैव टू एक्सेस डिमांड हो रही है तो वी हैव टू इंक्रीज द प्राइसेस, एक्सेस सप्लाई हो रही है तो वी हैव टू डिक्रीज द प्राइसेस। तो सेम हियर एक्सचेंज रेट जो हमारा डिसाइड हो रहा है, एक्सचेंज रेट का मतलब $1 के बदले में हम कितने रुपए देंगे, $1 के एक्सचेंज में कितने रुपए जाएंगे। तो ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है कितने रुपए जाएंगे, ये भी डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे छोड़ दिया गया। डिमांड और सप्लाई का मतलब किसकी डिमांड हो रही है, अब डिमांड रुपीस की हो रही है या फॉरेन करेंसी की हो रही है, ठीक है। तो मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट का मतलब गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल। एक तो ये किया कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में नहीं रखा। सबसे पहले शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी का मतलब रुपीस, कि इसके अंदर डिक्रीज किया, वैल्यू कम की, जस्ट बिकॉज कि हमारा इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़े, क्योंकि जब हमारी करेंसी चीप हो जाएगी तो बाहर के लोग हमारे यहाँ से ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए जब थोड़ा सा बैलेंस हो गया तो मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट को लेके आए। गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया रुपी को कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब जो मार्केट फोर्सेस जो करेंगे डिमांड और सप्लाई की वही करेंगे। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। एंड नाउ industrial sector reforms. Now I will start industrial sector reforms and further chapter in my next video. Time limit is very short here, that's why I am stopping my video here. That's why I am summing it up, and from my next video I'll start this chapter soon. And I hope you will understand this. Please go through it, listen twice or thrice, understand it, write it in your own words on your notebooks. And all the best. Whichever queries you will be having, please ask me on WhatsApp. Thank you. All the best. God bless you.